Class, it's your Feb March 2023 paper 2 of your additional mathematics. Course code is 4037 or 0606, both are same. So let's start. Alright, in the first part, on the axis below, sketch the graph of y equals to modulus of 4 cos 2x from 0 till pi, that is 180, giving the coordinates of any points where the graph meets the x-axis. Alright. So we need to construct the graph of y equals to 4 cos 2x. Firstly, you must have an idea how to construct the graph of y equals to cos x. So recall the concept that when you need to construct the graph of y equals to cos x, it will be look like this, right? So if it says 2 cos x, that means from the period of 0 to 360, you will get two shapes like this one, but that is from 0 till 2 pi, 360 degree, right? If it's cos 2x. Now we have 4 cos 2x. So firstly, I'm going to construct the points here. It's pi, and on my x-axis, if I do 1, 2, 3, 4, yes, I can do that. So it's 1, it's 2, it's 3, and it's 4. Negative 1, negative 2, negative 3. Alright. Now, I need to construct the points on my x-axis. It's pi. In terms of degree, we can say that it's 180 degree, right? Half of 180, it's 90. And in terms of pi, we are going to say that it will be pi over 2. From 0 to pi over 2, the mid value is pi over 4. Alright? And from pi over 2 to pi, we need to find out the mid value of pi over 2 and pi. If you add them, you will get 3 pi over 2. And for mid value, you need to divide it by 2. So it will be 3 pi over 4. So that point we have, it's 3 pi over 4, right? Now the behavior of cos, when angle is 0, cos is maximum. When angle is pi over 4, it will be this one. At pi over 2, cos को basically जाना चाहिए था नीचे, but due to the sign of modulus, the negative value becomes the positive one, and you will get the same point at 4, this one, and at pi. At pi, it is maximum. Alright? So if you construct the graph here, make sure कि आपका जो कर्व हो वो जितना आप अच्छा स्मूथ बना सकते हो वैसे बनाएं. ये ऐसे जाएगा. अब इसको जाना तो ऐसे चाहिए था, लेकिन चूंकि मॉडुलस आ गया, तो मॉडुलस ने क्या किया, इस पार्ट को कर दिया रिफ्लेक्ट टुवर्ड द पॉजिटिव वाई एक्सिस. Alright, that's how your graph looks like of y equals to 4 cos 2x. Right, moving towards the next part. Do not use a calculator in this question. Expand and simplify x root 11 upon 2 root 3 minus 1. Give your answer with a rational denominator. Alright, at first I need to expand it. So in the numerator it will be x square, and root of 11 it will be 11 divided by. In the denominator it will be 2 under root 3 minus 1 and whole square. Numerator will be remain same, 11x square. For the denominator part, you need to expand identity here, and that is a square minus 2ab plus b square. Right? Placing the values. A is what? It's 2 under root 3. 2 under root 3. What is b? It's 1. Numerator remains same, that is 11x square. For the denominator part, 2 square is 4 and root 3 square is 3. Minus 2 2s are 4 under root 3 and 1 square is 1. Continue. 11x square divided by 4 3s are 12 plus 1, it's 13 minus 4 under root 3. Alright. Now you need to multiply and divide by 13 minus plus 4 root 3 divided by 13 plus 4 root 3. That is for the rationalizing. Alright. Now in the numerator you need to expand. So 11x square, I'm going to continue the part here. So 11x square times 13 plus 4 under root 3 divided by. In the denominator it will be identity again, a square minus b square. The value for a is 13 and the value for b is 4 under root 3. Alright.
For numerator 11 times 13, 11 times 13 it will be 143 x square plus 4, 11 fours are 44 under root 3 x square, and for the denominator part 13 square is 169 minus 16 threes are 48. So 169 minus 48, it's 121. So in the denominator we have 121. अब न्यूमरेटर में मैं दोबारा ये स्टेप फॉलो कर रहा हूँ क्योंकि मल्टीप्लाई करने का तो फ़ायदा नहीं हुआ, हमारे पास तो 11 कैंसिल हो जाएगा तो हमारा क्वेश्चन और सिंप्लीफाई हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने इसको कॉपी कर दिया एज इट इज़, और यहाँ पर आने के बाद अब 11 1s आर एंड 11 11s आर 121 कैंसिल हो गया, तो बचा कि आपके पास एक्स स्क्वायर टाइम्स 13 प्लस 4 अंडर रूट 3 बाई 11, दैट इज़ योर फाइनल आंसर. Moving towards the next question, solve the inequality 5x plus 4 less than equals to 2x minus 3. So keep in mind when you have the inequality modulus sign on both sides of the equation, so what you need to do, you need to apply squaring on both sides. So that will be equals to 5x plus 4 square less than equals to 2x minus 3 whole square. Now we need to expand identity here, that is equals to a square plus 2ab plus b square, sign of inequality less than equals to, and the second identity we have a square minus 2ab plus b square. Placing values, it will be 5x, 5x, 4 and 4, that will be 2x, 2x, 3 and 3. Now expand it, 5x whole square is 25x square plus 2 5 the 10 4s are 40x plus 4 square is 16 less than equals to 2x ka square 4x square minus 2 to the 4 3s are 12x and plus 3 square is 9. Alright, now you need to gather all the likewise terms on one side. So 4x square when you shift on the left side, it will be 25 minus 4 leads to 21x square, 40, and minus 12 on the left side, it will be positive 12, 40 plus 12, it will be 52x, and 16 minus 9, so that is equals to 7, plus 7 less than equals to 0. At this point, हम पहले ये देखेंगे कुछ कॉमन आ सकता है, so 7 आ सकता है, 52 divided by 7, 52 divided by 7, it's not divisible. तो अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, अब आप यहाँ पर quadratic formula अप्लाई कर देंगे. Now that will be equals to minus b plus minus under root b square, it's 52 square minus 4ac divided by 2a less than equals to 0. Alright, अब ये हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं. करने के बाद मैं सिंपल क्या करूँगा, इसको कैलकुलेटर सॉल्व कर लूँगा, ठीक है ना. ये स्टेप शो करना लाजमी होता है. सो एक्स स्क्वायर इज 21, एक्स इज 52 एंड द कांस्टेंट इज 7. ये वैल्यू प्लेस कर दी आपने. यू गॉट द वैल्यू. फर्स्ट वैल्यू ऑफ एक्स इज -1/7, -1/7, एंड द नेक्स्ट वैल्यू इज -7/3. Alright, now we have a sign of lesser than equals to. If you construct the values for x, so it's -1/7 and -7/3. So -1/7 आपके पास बहुत छोटी सी वैल्यू होगी, ये -1/7 और ये -7/3, कुछ ऐसे आपके पास वैल्यूज होंगी, ठीक है, रफली बता रहा हूँ. इफ़ यू ड्रॉ दैम दैट विल बी अ हैप्पी फेस, क्योंकि आपके पास पॉजिटिव एक्स स्क्वायर है, राइट. आपके पास साइन लेस देन ये आइडेंटिफाई करता है, वी आर लुकिंग फॉर दिस रीजन, एंड फॉर दिस रीजन द वैल्यूज फॉर एक्स it must be greater than -7/3 and lesser than -1/7. That's how you need to write your final answer. Alright, moving towards the next one. From trigonometry, it says sec square 5x minus 10 square 5x over cosec 5x. Show that y equals to a sin bx where a and b are integers, and hence find the value of integral of y dx. हैं, इसका मतलब क्या हो गया कि भाई ये जो आप इसको सॉल्व करोगे उसका आंसर आपने यूज करना है. पहली चीज आपको यहाँ पर आइडेंटिटी अच्छी तरह पता होनी चाहिए, ठीक है ना. आपको क्वेश्चन है y इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर 5x माइनस 10 स्क्वायर 5x
डिवाइडेड बाय कोसेक 5x। ये आपके पास आपको क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको आइडेंटिटी ये पता होनी चाहिए दैट 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर एक्स। ये आपकी आइडेंटिटी है। तो अगर मैं लिखूँ सेक स्क्वायर 5x है तो यहाँ पर टेन स्क्वायर 5x हो जाएगा, सिंपल है। तो इसको मैं प्लेस कर दूंगा अब इसकी जगह, ऑलराइट। तो अब मेरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, नाउ दैट विल बी इक्वल्स टू सेक स्क्वायर 5x की जगह आ जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर 5x, और जो अगला टेन स्क्वायर 5x था वो अपनी जगह एज इट इज आ गया। डिवाइड में कौन है, डिवाइड में आपके पास कोसेक 5x, ठीक है। इसका फायदा ये हुआ कि आपके पास ये प्लस माइनस कैंसिल हो गया, तो लेफ्ट ओवर क्या बचा, 1 डिवाइडेड बाय कोसेक 5x, एंड 1 ओवर कोसेक 5x इट इज इक्वल्स टू साइन 5x, दैट इज योर y। ये आपको यहाँ पर शो करना था, जो कि आपने कर दिया, एंड इसके रिस्पेक्ट से आपके पास जो a की वैल्यू आ रही है इट इज 1, ऑलराइट, एंड b इज 5। ये आपके आंसर्स आ गए। एंड हेंस इवैल्यूएट इंटीग्रल ऑफ 0 टू पाई ओवर 5 y dx। अब देखें y क्या है, y तो ये पूरा था, और इस पूरे को हम प्रूफ कर चुके हैं कि यार ये पूरा बराबर है हमारे पास साइन 5x के। तो अब ये इंटीग्रल के साथ मैं सिंपल क्या लिखूंगा, साइन 5x dx। ये यहां पर आ गया। साइन का इंटीग्रल क्या होता है, साइन का इंटीग्रल होता है माइनस कॉस 5x डिवाइडेड बाय 5, c नहीं आएगा बिकॉज वी हैव लिमिट्स भी हियर, ऑलराइट। अब आपने लिमिट्स अप्लाई करनी है, सो इट विल बी इक्वल्स टू माइनस कॉस 5 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, माइनस कॉस 5 एंड लोअर लिमिट, और मैं 1/5 जो डिनोमिनेटर का है उसको मैंने लिख दिया बाहर एज अ कॉमन, ऑलराइट। तो अब मेरी लिमिट अपर लिमिट क्या है, अपर लिमिट इज 5/5 एंड लोअर लिमिट इज 0। जब आपने अपर लिमिट को सॉल्व किया तो 5 और 5 कैंसिल हो जाएगा, कॉस 180 कॉस cos 180 इट्स -1। अच्छा ये सॉरी मेरे पास जो है वो है रेडियन मोड पे होना चाहिए ना, तो cos पाई लिखेंगे यहाँ पर हम, इट्स -1। तो ये आएगा 1/5 माइनस cos पाई इज -1 माइनस cos 0 इज 1। So 1/5, 1 minus minus 1 minus minus plus 1, it is equals to 2 divided by 5, and that is your final answer. Alright, so I hope it is clear. If there is any problem, feel free to drop me a message on my YouTube channel. I will try to get back to you as early as possible. Next one, show that x minus 1 is a factor of the expression. Show करना है आपने शो करना है कि ये इसका फैक्टर है। फैक्टर का मतलब क्या हुआ कि जब आप x की जगह 1 पुट करोगे इक्वेशन का आंसर 0 आना चाहिए। तो आपकी इक्वेशन क्या है, आपकी इक्वेशन है x³ माइनस 2x स्क्वायर माइनस 19x एंड प्लस 20। ये आपकी इक्वेशन है। जहाँ जहाँ x है आपने वहाँ 1 प्लेस कर दिया। सो 1 माइनस 2 माइनस 19 प्लस 20। सो 1 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 19 प्लस 20, सो दैट लीड्स टू 0। तो ये आपको शो करना था, आपने कर दिया। Hence write x³ minus 2x square minus 19x plus 20 as the product of its linear factors। अब यहाँ पर वही कह रहा है कि आपने इसको सॉल्व करना है और इसको इसके लीनियर फैक्टर में लिखना है। तो यहाँ पर जो मेथड में ऑप्ट करता हूँ उसको मैं कहता हूँ सिंथेटिक डिवीजन। ये कैसे होता है, इट्स वेरी सिंपल। आप ऐसा बनाओगे टेबल। सबसे पहले आप अपनी क्यूबिक इक्वेशन लिखो यहाँ पर कोफिशिएंट्स। तो x³ का कोफिशिएंट क्या है, 1 है। स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, -2 माइनस 19 एंड देन 20, ऑलराइट। ये जो ये साइड है हमारे पास, यहाँ पर आएगा पहला फैक्टर जो हम निकाल चुके होते हैं फर्स्ट पार्ट में। वो फैक्टर क्या था हमारे पास, 1। अब जब आपने ये टेबल बना दिया तो अब एक लाइन ऐसे आएगी हमारे पास, ठीक है ना। पहला नंबर आपका एज इट इज आ जाएगा, तो ये 1 तो आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, नाउ यू नीड टू मल्टीप्लाई 1 by 1, इट इज 1 माइनस 2 प्लस 1, इट विल बी -1। अगेन you need to multiply 1 times -1, it is -1, minus 19 minus 1 minus 20, again 1 multiply by -20, it's -20 and 20 minus 20 it's 0। जब आप ये मेथड ऑप्ट करेंगे मेक श्योर कि आपके पास लास्ट टर्म हमेशा 0 आनी चाहिए, ठीक है। अब आपकी जो पावर है वो एक रिड्यूस हो गई। नाउ दैट इक्वेशन मस्ट बी रिटन लाइक x² माइनस x माइनस 20 इज इक्वल्स टू 0। ये आपकी इक्वेशन आ गई क्वाड्रेटिक में। नाउ यू कैन सिंप्लीफाई बाय मिडिल टर्म, सो इट विल बी x² माइनस 5x प्लस 4x माइनस 20 इज इक्वल्स टू 0।
you will get x minus 5 plus 4x minus 5 equals to 0. So the linear factors we are getting here are x plus 4, x minus 5 and the first factor given in the question it is x minus 1 जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ था ये रहा x minus 1. ठीक है, तो ये भी इसका एक फैक्टर है. तो ये आपने तमाम फैक्टर्स को इस फॉर्म में लिखना था. ये आपका सेकंड पार्ट का आंसर है. ऑलराइट, नेक्स्ट वन, हेंस फाइंड द एग्जैक्ट सॉल्यूशन. अब ये दोबारा यहाँ पर एक कीवर्ड आ गया दैट इज हेंस. हेंस का मतलब क्या हुआ कि भाई आपने इसका सॉल्यूशन प्रीवियस पार्ट से निकालना है. अब हमें लगेगा इक्वेशन तो बहुत चेंज है हमारे पास, लेकिन नहीं. अगर आप अपनी इक्वेशन को देखो तो आपको एक कनेक्शन नजर आएगा इस इक्वेशन में जो आपने सॉल्व की है और जो आपको इक्वेशन दी है. ऑब्जर्व करें क्या नजर आ रहा है आपको. आपको नजर ये आएगा कि बेसिकली x की जगह एक्सपोनेंशियल का फंक्शन आ रहा है. ये आपको नजर आएगा. देखें कैसे, अब मैं दिखाता हूं आपको. हमारे पास पहली इक्वेशन क्या थी, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 19x प्लस 20. अब जहां जहां मेरे पास x है वहां पर e की पावर y आ जाएगा. तो x की जगह e की पावर y और 3 तो ये लिखा था, देखिए 3 अपनी जगह आ गया. माइनस 2 x की जगह e की पावर y, 2 यहाँ लिखा था, 2 यहाँ पर आ गया. माइनस 19 x की जगह e पावर y एंड देन प्लस 20. ये हो गया बेटा आपका. अब आप देखो यही इक्वेशन आपके पास है. ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ है इसका कि भाई जो आपने आंसर्स ऊपर निकाले थे वही इसके आंसर्स आएंगे. तो हमने ये कहा कि हमारे पास हुआ ये सवाल में कि जहां पर x था वो अब बराबर हो गया e टू द पावर y के. अब x के आपके पास जो आंसर्स हैं वो आप 1 बाय 1 प्लेस करो. हमने ये इक्वेशन सॉल्व की थी. ठीक है, इसमें हम अगर देखें x प्लस 4 इक्वल टू 0 तो हमारे पास पहला x का आंसर क्या आ रहा है, इट्स नेगेटिव 4. तो जब x की जगह आप लिखोगे नेगेटिव 4 तो आपकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, इस इक्वेशन की बात की जा रही है. तो हमने फाइंड आउट कर लिया दैट x इज इक्वल्स टू e टू द पावर y. पहली आपके पास x की वैल्यू है नेगेटिव 4. तो जब आपने x की जगह लिखा नेगेटिव 4 इक्वल्स टू e पावर y, यू नीड टू अप्लाई ln ऑन बोथ साइड्स. तो ln आपने यहाँ भी अप्लाई किया, ln आपने यहाँ भी अप्लाई किया. नेगेटिव वैल्यू आ गई, मैथड एरर अनडिफाइंड हो जाएगा. तो यहाँ पर तो कोई वैल्यू नहीं आएगी. अब सेकंड को लेते हैं x माइनस 5 को. तो हमने कहा x माइनस 5 इक्वल टू 0. तो ये आ जाएगा x इक्वल्स टू 5. दोबारा सपोजिशन क्या थी हमारे पास, दैट x इज इक्वल्स टू e टू द पावर y. x की जगह आपने क्या पुट करना है, x की जगह आपने पुट किया 5 इक्वल्स टू e टू द पावर y. अगेन यू नीड टू अप्लाई ln ऑन बोथ साइड्स. तो आपको ये मालूम है कि ln e तो आपका 1 हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू ln 5. क्योंकि एग्जैक्ट सॉल्यूशन है तो मैं अपना आंसर इसी फॉर्म में छोड़ दूंगा. ठीक है, लास्टली मेरे पास एक और वैल्यू है x की, दैट इज 1. सो x माइनस 1 इक्वल्स टू 0. यू गॉट x इज इक्वल्स टू 1. x is equals to e to the power y, so 1 equals to e to the power y, so ln of 1 equals to y. तो आपके पास जो आंसर्स हैं y की दो वैल्यूज आ रही हैं. जो लास्ट वाली वैल्यू है दैट विल बी अनडिफाइंड. ऑलराइट, तो ये आपके आंसर्स हैं. नेक्स्ट वन, a geometric progression has first term 64 and a common ratio of 0.5. find the 10th term. अब आपके पास क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है. आपको फर्स्ट टर्म दे दिया है, इट्स a इज इक्वल्स टू 64. आपको रेशो दे दिया r इज इक्वल्स टू 0.5. ठीक है, आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड द 10th टर्म. तो पहले हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, टी आर इज इक्वल्स टू ए टी एन इज इक्वल्स टू ए आर एन माइनस 1. ऑलराइट, ये आपके पास वर्किंग फॉर्मूला आ गया. वैल्यू प्लेस करते हैं. यहाँ पर हमारा n क्या है, n हमारे पास 10 है. तो टी 10 इज इक्वल्स टू ए इज वॉट 64, r इज वॉट 0.5 एंड n इज वॉट n इज 10 माइनस 1. ये आपका बन जाएगा. सॉल्व कर लेंगे इसको. So it will be 0.5 to the power 10 minus 1 9 multiply with 64. So that is equals to 1 over 8. So the 10th term is 1 over 8. ये आपका सिंपल सा आंसर आ गया. नेक्स्ट वन, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 10 टर्म्स. तो यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम. सम का फॉर्मूला क्या कहता है आपको, एस एन इज इक्वल्स टू ए 1 माइनस आर टू द पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर. वैल्यू प्लेस करते हैं यहाँ पर. आपके पास a की वैल्यू क्या है, a इज योर फर्स्ट टर्म दैट इज 64. 1 माइनस r की वैल्यू आपके पास क्या है, इट्स 0.5. n आपको दे दिया है 10 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.5. सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको. 1 सबसे पहले है 0.5 टू द पावर 10 और आपने इसको 1 में से माइनस किया, मल्टीप्लाई किया 64 से. डिनोमिनेटर आपको क्या हो जाएगा, 0.5, क्योंकि 1 माइनस 0.5 इट्स 0.5.
So that is equals to 127.875, which is approximately equals to 128. ये आपका आंसर आ गया फर्स्ट 10 टर्म्स का सम. फाइंड द सम टू इन्फिनिटी. पहले फॉर्मूला बताना चाहिए आपको. एस इन्फिनिटी इज इक्वल्स टू ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर. फॉर्मूला प्लेस कर दिया आपने. ए इज वॉट? ए 64 डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर इज वॉट? 0.5. 1 minus 0.5, it's 0.5, and that is equals to 64 divided by 0.5, it's 128. तो ये आपका आंसर आ जाएगा सम टू इन्फिनिटी का. इट्स 128. इजी क्वेश्चन. ऑलराइट, मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन. An arithmetic progression is such that S20 minus 400 is equals to 2S10 and U1 ratio U6 is 1:5. Find the sum of the first 3 terms of this progression. तो पहली बात आपको इक्वेशन क्या दी है कि S20 minus 400 is equals to 2 times of S10. ये आपको दे दिया. और U1 और U6 मतलब ये टर्म 1 और टर्म 6 का आपको रेशो दे दिया. दैट U1 over U6 is equals to 1/5. हम पहले सिंप्लीफाई करते हैं U1 को. देखें, आपको फॉर्मूला पता होता है कि Tn बराबर होता है हमारे पास a प्लस n माइनस 1d के. ये तो आप लोगों को अच्छी तरह मालूम होता है, ठीक है ना. टर्म का फॉर्मूला होता है हमारे पास. अगर फर्स्ट टर्म होगी तो वो तो a होता है. अगर 6 टर्म होगी तो मैं कहूँगा T6 क्या हो जाएगा? दैट इज इक्वल्स टू a प्लस 5d. ऑलराइट, तो ये T6 बेसिकली मेरे पास उसने U6 को बोला हुआ है, ठीक है. तो U1 की जगह तो a आएगा, U6 की जगह आ जाएगा a प्लस 5d इज इक्वल्स टू 1/5. क्रॉस मल्टीप्लाई करें अगर हम, तो हमारे पास आएगा 5a इज इक्वल्स टू a प्लस 5d. ऑलराइट, 5a माइनस a, इट इज़ 4a इज इक्वल्स टू 5d. तो यहाँ पर आपके पास एक रिलेशनशिप आ गया a का और d का. अब आपने यूज़ करना है सेकेंड कंडीशन को जो आपको दिया है सम का. ऑलराइट, सम का फॉर्मूला भी आपको पता होना चाहिए. Sn का फॉर्मूला क्या होता है? Sn इज इक्वल्स टू n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 टाइम्स d. ये आपका फॉर्मूला होता है Sn का, ठीक है. अब मैं यहीं पर एक पुट करके दिखा दूँ आपको कैसे हम करेंगे. अगर लेट्स सपोज मैं बात कर रहा हूँ S20 की, तो n की जगह 20 आ जाएगा आपके पास. तो इट विल बी 20 डिवाइडेड बाई 2. 2a प्लस n की जगह 20 माइनस 1 टाइम्स d. ऑलराइट, तो ये आ रहेगा 10 ब्रैकेट में 2a प्लस 20 माइनस 1, इट्स 19d. तो ये आ गया S20. तो S20 की जगह मैं उसकी जो मैंने इक्वेशन निकाली है वो मैं इसको प्लेस कर रहा हूँ S20 की जगह, ठीक है. तो ये आ जाएगा मेरे पास 10 टाइम्स 2a प्लस 19d माइनस 400 इज इक्वल्स टू. अब यहाँ पर S10 क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स S10. सेम फॉर्मूला अप्लाई होगा. S10 मैं यहाँ निकाल के दिखा दूँ आपको. दैट विल बी इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n minus 1 times d. That is equals to 5 times 2a plus 9d. सिंप्लीफाई करेंगे you will get 10a plus 45d. तो अब मैं इसको यहाँ प्लेस कर देता हूँ. S10 का आंसर आ जाएगा 10a plus 45d. ऑलराइट, अब अगर हम सिंप्लीफाई करना स्टार्ट करें इसको, पहले मैं ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर देता हूँ. तो 2 10s are 20a plus 19 into 10 190d minus 400 is equals to 2 10s are 20a plus 45 2s are 90d. ये आपके पास आ गई. अब आप एक रिलेशन तो बना चुके हैं a और d का, वो आपने फर्स्ट इक्वेशन निकाल ली थी. तो यहाँ पर लेट सपोज मैं कहता हूँ कि यार a को बनाएं सब्जेक्ट, तो a क्या हो जाएगा? 5d डिवाइडेड बाय 4. अब जहाँ पर भी a आएगा वहाँ पर मैं इसको यूज़ कर लूँगा, ठीक है. जैसे कि लिखा हुआ है 20. अब a की जगह क्या आएगा? a की जगह आएगा मेरे पास 5d डिवाइडेड बाय 4 प्लस 190d माइनस 400 इज इक्वल्स टू 20. a की जगह क्या आने वाला है हमारे पास? 5d डिवाइडेड बाय 4 एंड देन प्लस 90d. अब इस पूरी इक्वेशन में सिर्फ आपके पास एक ही अननोन है, वो आपके पास d है. तो अब हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं इसको इजीली. 4 1s are 4, 4 5s are 20, 5 5s are 25d. ये हो गया. प्लस 190d माइनस 400 इज इक्वल्स टू 4 1s are 4, 5s are 5 5s are 25d प्लस 90d. 25 और 25 तो गया आपके पास. अब क्या बचा आपके पास? 190d. ये 90d यहाँ पर आएगा तो माइनस हो जाएगा. इज इक्वल्स टू 400. 190 माइनस 90
100 डी इज इक्वल्स टू 400 और आपके पास डी का आंसर आ जाएगा 4। और जब आपके पास डी का आंसर आ गया, ए का आंसर आ गया, अब आपको क्या कह रहा है, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट थ्री टर्म्स। फर्स्ट थ्री टर्म्स निकालना है आपने। फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, S3 इज इक्वल्स टू n अपॉन 2 ब्रैकेट 2a। ए क्या था, 5d अपॉन 4। आप यहाँ पे d की वैल्यू प्लेस करते हैं तो क्या आएगा, 5 इंटू डी की जगह 4 अपॉन 4 कैंसिल हुआ तो a का आंसर आ जाएगा आपके पास 5। तो 2a प्लस n माइनस वन, एन की जगह आएगा 3 माइनस वन और d कितना है आपके पास 4। ये मैंने सारी वैल्यूज प्लेस कर दी फॉर थर्ड टर्म। सिंप्लीफाई कर लेंगे, 3 अपॉन 2 ब्रैकेट 2 5 जार 10 प्लस 3 माइनस 1 2 2 4 जार 8 10 प्लस 8 18 18 अपॉन 2 9 3 जार 27। ये आपका आंसर आया फर्स्ट थ्री टर्म्स का, दैट इज 27। ऑलराइट, Alright, class, moving towards the next question. Question number 7, it says that variable x and y are such that y equals to 1 plus cos square x divided by 10x. Use differentiation to find the approximate change in y as x increases from pi over 4 to pi over 4 plus h. इसका मतलब ये क्वेश्चन हुआ आपका स्मॉल चेंज का। आप देखें पाई ओवर 4 से पाई ओवर 4 प्लस एच हो गया, वेयर एच इज़ स्मॉल। सबसे पहली बात यहाँ पर आपका वर्किंग फार्मूला क्या अप्लाई करते हैं, हमारा वर्किंग फार्मूला होता है डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू डी वाई ओवर डी एक्स। अच्छा, फार्मूला आपको ये बताया था कि पहला स्टेप क्या होगा। अब पहला स्टेप है आई नीड टू फाइंड द वैल्यू फॉर डी वाई बाई डी एक्स। सो वी हैव द वैल्यू फॉर वाई एंड द एक्सप्रेशन इज 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 10x। क्योंकि यहाँ पे डिवीजन हो रहा है, सो वी कैन अप्लाई प्रोडक्ट रूल, सॉरी क्वोशंट रूल। सो यू क्या हो जाएगा आपके पास, इट्स 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स एंड वी इज़ वॉट, वी इज़ 10x। ये आपका अप्लाई हो रहा है यू अपॉन वी का वर्किंग फार्मूला। तो पहले आप डेरिवेट कर लेते हैं, तो यू डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, इट विल बी, वन डेरिवेटिव जीरो होता है, इट विल बी 2 कॉस एक्स एंड देन कॉस का डेरिवेटिव विच इज़ माइनस साइन एक्स। ये तो आपने इसको डेरिवेट कर दिया। फॉर वी डेरिवेटिव 10x का डेरिवेटिव होता है हमारे पास सेक स्क्वायर एक्स। ऑलराइट, अब आएगा आपका वर्किंग फार्मूला। वर्किंग फार्मूला सेज वी डेरिवेटिव ऑफ यू माइनस यू डेरिवेटिव ऑफ वी डिवाइडेड बाय वी स्क्वायर। अब ये सब चीज़ें हम निकाल चुके हैं, वी नीड टू प्लेस द वैल्यूज हेयर। सो वी इज़ वॉट, वी इज़ 10x टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ यू, ये आ जाएगा आपके पास माइनस 2 कॉस एक्स साइन एक्स माइनस यू 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ वी, इट्स सेक स्क्वायर एक्स। ऑलराइट, एंड होल डिवाइडेड बाय वी स्क्वायर। वी क्या था आपके पास, इट्स 10x स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पर आपने इसको कोई सॉल्व करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आप क्या करें, आप डायरेक्ट x की वैल्यू प्लेस करें। अब जहाँ पर भी x होगा वहाँ पर मैं पाई ओवर 4 प्लेस करूँगा, जो इसकी इनिशियल वैल्यू थी। तो ये आएगा 10 और x की जगह क्या आ जाएगा, पाई ओवर 4 ब्रैकेट माइनस 2 कॉस एक्स साइन एक्स माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स एंड डिवाइडेड बाय 10x और इसका होल स्क्वायर। ऑलराइट, और जहाँ पर भी x था वहाँ पर मैं सिंपल पाई ओवर 4 प्लेस कर दूँगा। ठीक है जी, ये आपने पहला इंपॉर्टेंट काम तो कर लिया। सिंप्लीफाई करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। अब आपने आना है कैलकुलेटर के ऊपर, सिंप्लीफाई करते हैं, मेक श्योर कि आपका कैलकुलेटर जो है वो रेडियन मोड पर होना चाहिए। तो अब मैं 10 पाई ओवर 4 तो हमारे पास होता है 1 होता है, ठीक है ना, पाई ओवर 4 इट इज़ इक्वल्स टू 1। तो जहाँ जहाँ 10 पाई ओवर 4 है वो तो 1 हो जाएगा, मतलब डिनोमिनेटर आपका 1 हो गया। अब आते हैं हम कॉस पर। कॉस का पाई ओवर 4 ये मल्टीप्लाई होगा 2 से, नेगेटिव 2 है, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन पाई ओवर 4 से। ठीक है, ये आपने मल्टीप्लाई कर दिया। पूरे का आंसर तो आपका आ चुका है -1। ये पूरा ब्रैकेट सॉल्व हो गया माइनस। अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा पहले कॉस पाई ओवर 4 एंड देन, अच्छा इसकी बात करूँ स्क्वायर वाले की, ठीक है। जो भी आंसर आया उसका आपने स्क्वायर कर दिया और उसको आपने 1 में ऐड कर दिया, तो ये आ जाएगा 3/2। तो ये आ जाएगा आपके पास 3/2। अच्छा, अगर सेक स्क्वायर लिखा हुआ है, सेक स्क्वायर पाई ओवर 4,
तो ये बेसिकली बराबर है 1 अपॉन कॉस स्क्वायर पाई ओवर 4 के, ठीक है ना। तो हम इसको ऐसे सॉल्व कर लेते हैं। पहले हम करते हैं कॉस पाई ओवर 4, कॉस पाई ओवर 4, ये आ गया। इसका स्क्वायर कर लेते हैं और जो भी होगा उसको 1 से हम डिवाइड कर लेंगे, तो दैट इज इक्वल्स टू 2। तो ये इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 2, ये आ जाएगा 2, ठीक है। डिवाइड में हमारे पास 1 है। अब आपके पास यहाँ पे 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आंसर क्या आएगा, -1 -3, दैट इज इक्वल्स टू -4। ये आ गया आपके पास dy ओवर dx। ऑलराइट, ये dy ओवर dx आ गया, सारी वैल्यूज प्लेस कर दी हमने। अब वो जो हमने मेन फार्मूला लिखा था बिल्कुल टॉप पर स्टार्टिंग पे, डेल्टा y ओवर डेल्टा x इज इक्वल्स टू dy ओवर dx। तो dy ओवर dx तो आप निकाल चुके हो, दैट इज -4। ये तो आ गया -4, डेल्टा वाई आपको निकालना है। डेल्टा एक्स क्या है, अब ये देखिए आपका चेंज क्या था। तो आपका चेंज था पाई ओवर 4 से लेके पाई ओवर 4 प्लस एच। तो आपका जो चेंज था, जो आपका डेल्टा एक्स था, इट इज़ ओनली एच। तो डेल्टा एक्स की जगह मैं सिंपल प्लेस कर दूंगा एच, एंड डेल्टा वाई इज इक्वल्स टू -4h। ये आपका आंसर है। गोइंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट वन, given that y equals to 1 over x minus 3 whole cube, show that y minus dy over dx minus 1 over 3 d square y over dx square can be written as this form। ऑलराइट, तो पहला काम तो मुझे यहाँ करना है dy over dx निकालना है। तो y क्या है, y इज इक्वल्स टू 1 ओवर x माइनस 3 पावर होल क्यूब। अगर मैं इसको ऊपर शिफ्ट कर दूंगा तो ये हो जाएगा y इज इक्वल्स टू x माइनस 3, और जो इसकी पावर है ना, इट विल बी -3। ऑलराइट, अब मैं इसको डेरिवेट करना स्टार्ट करता हूँ। सो डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल्स टू, पहले पावर लिखेंगे, फिर पावर में से 1 को माइनस करेंगे। सो दैट इज़ डी वाई ओवर डी एक्स। अच्छा, अगर मैं इसको दोबारा डेरिवेट कर लूँ, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, अब क्या हो जाएगा, 3 4 12, एक्स माइनस 3 एंड पावर इज़ -5। ये 3 4 से इसलिए हो गए, पहले पावर आके मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है ना। अब मेरे पास डी वाई बाई डी एक्स भी आ गया, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर भी आ गया। अब मैं तमाम चीज़ें इस इक्वेशन में प्लेस करूँगा। सबसे पहले है वाई। अच्छा, वाई क्या था हमारे पास, वाई था 1 अपॉन एक्स माइनस 3 टू द पावर क्यूब, ये आ गया वाई माइनस डी वाई ओवर डी एक्स क्या था। अच्छा, मैं पावर को अगर डिनोमिनेटर में लिखूँगा तो ये हो जाएगी +4, राइट। तो मैं पावर को डिनोमिनेटर में लेके जाऊँगा तो ये आएगा मेरे पास, इट्स -3 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 3 एंड होल पावर 4। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद लास्ट टर्म आ रही है -1/3। 1/3 कहाँ से आ रहा है, ये दिया हुआ है आपको, ठीक है। और डी स्क्वायर वाई की जगह आ जाएगा 12 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 3 एंड होल पावर 5। ये आपने तमाम जो वैल्यूज थी प्लेस कर दी। अब सिंप्लीफाई करें इसको, 1 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 3 पावर क्यूब, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 3 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 3 होल पावर 4। यहाँ सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 3 1 जार 3 4 जार, ये आ रहेगा -4 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 3 टू द पावर 5। अच्छा, ये सेंटर वाला भी हमारे पास एक्स माइनस 3 ही है, ठीक है ना, बाय मिस्टेक लिख दिया था मैंने। अब आपके पास यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा, एंड एलसीएम इज़ द हाईएस्ट पावर, दैट इज़ एक्स माइनस 3 पावर 5। अब यहाँ देखिए पावर, इसकी पावर क्या थी 3, एलसीएम क्या है 5, दैट मीन्स 1 नीड टू बी मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस 3 होल पावर 2। जितनी पावर कम होगी उसको हम उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ये 3 था, ये 5 था, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये 4 था, ये 5 था, तो 1 से मल्टीप्लाई करूँगा मैं इसको। तो ये आएगा +3 मल्टीप्लाई विद एक्स माइनस 3 पावर 1। और 4 के पास तो पूरा एलसीएम है, तो वो किसी से मल्टीप्लाई नहीं होगा। ऑलराइट, अब आपके पास यहाँ पर ब्रैकेट एक्सपेंड कर लेते हैं अब, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरे पास एक्स स्क्वायर -3 2 3 6x, आइडेंटिटी एक्सपेंड हो गई, प्लस 3x माइनस 9 माइनस 4, डिनोमिनेटर आपका एज इट इज रहेगा, इट्स x माइनस 3 होल पावर 5। न्यूमरेटर में सिंप्लीफाई करते हैं इसको, तो ये आएगा मेरे पास 9 और 9 तो कैंसिल हो गया, इट इज़ इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x -4। डिनोमिनेटर अपनी जगह वैसा ही है, x माइनस 3 होल पावर 5। न्यूमिनेटर में अब करेंगे हम लोग मिडिल टर्म टेक, तो ये आएगा मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस एक्स माइनस 4 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 3 पावर 5। यकीनन कुछ ना कुछ कॉमन आ रहा होगा, तो यहाँ पे मुझे नज़र आ गया x कॉमन आया, बचा क्या मेरे पास x प्लस 4, वहाँ पर -1 कॉमन आ गया, इट्स x प्लस 4, डिनोमिनेटर अपनी जगह x माइनस 3 होल पावर 5। मज़ीद आप कॉमन ले सकते हैं, इट्स x प्लस 4 कॉमन निकाला आपने। जब आपने x प्लस 4 निकाला, बचा कि आपके पास इट्स x माइनस 1
डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 3 होल पावर 5, और ये आपको शो करने को कहा गया था, ठीक है ना। ये आपका आंसर आ गया फर्स्ट पार्ट का। नेक्स्ट वन, अच्छा नेक्स्ट पार्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फंक्शन इज डिफाइंड बाय फॉर एक्स ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5 माइनस 2 ई पावर माइनस एक्स, फाइंड द डोमेन ऑफ एफ इनवर्स। ऑल राइट, तो पहले तो आप ये देखें कि आपके पास फंक्शन क्या है। फंक्शन है मेरे पास 5 माइनस 2 ई टू द पावर माइनस एक्स। आपको निकालना है डोमेन ऑफ एफ इनवर्स। अब जिनको ये बात नहीं पता, बड़ी आसान सी बात है, मैं बता दूं आपको। एक हमारे फंक्शन होता है, एक उसका इन्वर्स होता है। जो फंक्शन की रेंज होती है, जो फंक्शन की रेंज है, वो बेसिकली डोमेन होती है हमारे पास इन्वर्स की। तो आपको डोमेन मांगी गई है इन्वर्स की, इसका मतलब है वो आपसे कह रहा है कि आप उसको फंक्शन की रेंज दो। अच्छा जी, आपके पास 5 माइनस 2 ई पावर माइनस एक्स, ये ग्राफ आपके पास नॉर्मल जो ग्राफ बनता है एक्सपोनेंशियल का, वो कैसा बनता है। अगर हम एक सिंपल एसिम्प्टोट की बात करें तो ये जो हमारा ग्राफ होता है, ये होता है y इज इक्वल्स टू ई टू द पावर x का। हमारे पास साइन में नेगेटिव आ रहा है, तो आपका जो ग्राफ बनेगा नेगेटिव का, वो कुछ इसका ऐसा बन रहा होगा। ऑलराइट, दैट इज अ ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू ई टू द पावर माइनस एक्स। पहले पार्ट में आपको कहा डोमेन, डोमेन का मतलब हो गया रेंज निकालने के लिए। अब देखें यहाँ पर आपको बोला हुआ है कि x शुड बी ग्रेटर देन 0। अगर मैं x की जगह 0 प्लेस कर दूँ तो क्या होगा। ये होगा 5 माइनस 2 ई टू द पावर 0, एनीथिंग विद 0 पावर इज़ 1, तो 5 माइनस 2 इज़ 3। इसका मतलब ये हुआ कि मेरी रेंज 3 तक जाएगी या 3 से स्टार्ट होगी। अब ये बाकी हम फैसला करेंगे दूसरी डोमेन को रख के। ऑलराइट, एक तो आपने रखा 0, तो आपको आंसर मिल गया। अब आपको ये पता होना चाहिए कि भाई इसकी आखिरी लिमिट क्या होगी, कहाँ तक जाएगा ये। अब ये ग्राफ से हमें आइडिया होता है, क्योंकि यहाँ पर होगी वैल्यू मेरे पास 3, जहाँ पर x 0 हो रहा होगा, और यहाँ पर एक वैल्यू होगी 5। इसका मतलब क्या होगा कि आपका ग्राफ 5 के करीब करीब जाएगा, लेकिन उसको टच नहीं करेगा। तो जो आपकी रेंज होगी ना, जब भी आपके पास डोमेन का सवाल आया करे, तो रेंज का जब भी आपके पास आए, तो आप हमेशा एक रफली स्केच जरूर किया करें। तो आपके पास जो रेंज होगी दैट इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, बट इट ऑलवेज लेसर देन 5, क्योंकि वो 5 को कट नहीं करेगा। जैसे कि आपके पास ई के इस फंक्शन में ई कभी एक्स को कट नहीं करता, तो मैं कहूँगा इसकी रेंज क्या होगी। तो ये हमेशा हमारे पास एक्स वाई शुड बी ग्रेटर देन 0, क्योंकि वाई इक्वल टू 0 तो आपका एक्स एक्सिस होता है, ये जो लाइन है, तो ये हमेशा इससे ऊपर होगा, कभी कट नहीं करेगा, इसलिए यहाँ पर ग्रेटर देन का साइन होता है खाली। तो ये आपका आंसर होगा। यहाँ पर 0 से स्टार्ट नहीं होगी हमारी रेंज, हमारी स्टार्ट होगी 3 से, क्योंकि हमारे पास लोअर पॉइंट 3 आ रहा है। तो बेटा ये आपकी रेंज हो जाएगी। सॉल्व एफ ऑफ एफ इनवर्स ऑफ 5x माइनस 4। यहाँ पर जो पहली मिस्टेक होती है ना बच्चे से, वो यहाँ पर होती है, वो इसको सॉल्व करने बैठ जाएगा। जबकि अगर मैं आपसे कहूँ कि यार 2 माइनस 2 हो रहा है या 5 माइनस 5 हो रहा है, तो आप फ़ौरन कैंसिल करोगे इसको। इसी तरह अगर फंक्शन और फंक्शन का इन्वर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास बचेगा क्या, आपके पास बचेगा x इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 5x माइनस 4, ये आपके पास बच गया। अब आपने इसको सिम्प्लीफाई करना है, सो यू नीड टू अप्लाई स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। इट विल बी इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 5x माइनस 4, अरेंज दैम इन इक्वेशन। सो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्ला के सॉल्व करोगे, लेकिन मैं यहाँ पर डायरेक्ट कर रहा हूँ, और आपको भी डायरेक्ट करना आना चाहिए। तो ये हो जाएगा मेरे पास a इज़ 1, b इज़ नेगेटिव 5 एंड c इज़ पॉजिटिव 4। तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो x का वो 4 आ रहा है और 1 आ रहा है। यू गॉट द वैल्यूज़ फॉर x इज इक्वल्स टू 4 एंड x इज इक्वल्स टू 1। यहाँ पर आपको और कुछ निकालने को उसने कहा नहीं, खाली सॉल्व का कहा था, तो मैंने सिर्फ x निकाल के छोड़ दूंगा ना। मुझे उसने ये कहा कि आपने y निकालना है, तो यही मेरा आंसर हो जाएगा। ऑलराइट, moving towards the next part. On the axis, sketch the graph of y equals to f of x, and hence sketch the graph of y equals to f inverse of x. Show clearly the position of any points where the graph meets the coordinate axis and the position of any asymptote. Alright. अब ये वही बात आ गई जो मैं आपको पार्ट 1 में बता रहा था। मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ कि जब भी आपको डोमेन रेंज की बात की जाए, वो कहे या नहीं कहे, लेकिन आप एक रफली स्केच ज़रूर किया करें, उससे आपको काफ़ी आसानी हो जाएगी, ठीक है ना। अब अगर हम बात करते हैं, मैं यहाँ पे दो डिफरेंट कलर यूज़ करूँगा, एक इन्वर्स का और एक फंक्शन का। तो हम लोग पहले फंक्शन यूज़ करते हैं ग्रीन पेन से, तो y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स मैंने बना भी दिया, ठीक है ना। अब आप ये देखें कि भाई आपके पास जब फंक्शन क्या था, फंक्शन में 2 मिनट लिख लूँ, कहाँ गया, 5 माइनस 2 ई पावर माइनस एक्स, 5 माइनस 2 ई पावर माइनस एक्स। जब मेरे पास x वैल्यू 0 थी, तो मेरा जो पॉइंट था वो आ रहा था मेरे पास 3 पर। ये मेरा पहला पॉइंट आ रहा था जो मैंने निकाला था, ठीक है ना। इसका एसिम्प्टोट बन रहा होगा 5 की तरफ, यहाँ पर होगा 5 की तरफ एसिम्प्टोट। तो जो आपका ग्राफ बन रहा होगा, अच्छा x हमारे पास जो डोमेन थी वो थी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो हम लोग नेगेटिव पे तो बनाएंगे नहीं,
तो इसका जो हमारा ग्राफ बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। ये एसिम्प्टोट की लाइन को ज़रा मैं हाईलाइट कर दूं पहले, क्योंकि मेरा ग्राफ कभी भी इसको मीट नहीं कर सकता, हमेशा इससे पहले पहले होगा। तो आपका ग्राफ कुछ ऐसा कर्व जा रहा होगा, ठीक है ना। और अगर मैं कुछ बेहतर करना चाहूँ तो कुछ ऐसा, ये कुछ ऐसा आपके पास जा रहा होगा। और इस पर मैंशन लाजमी कर दीजिएगा कि ये ग्राफ मैंने बनाया है y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स का, ये ग्राफ आ गया, ठीक है ना। अब जब दूसरी उसने बात की इन्वर्स की। अब याद रखें ग्राफ और उसका जो इन्वर्स होता है वो आपस की रिफ्लेक्शन होता है अक्रॉस दी लाइन y इक्वल्स टू एक्स पर। तो पहले मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लूँ रफली y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, जो बिल्कुल हमारे पास सेंटर से बनती है, डायगनल से कुछ ऐसी लाइन बनती है हमारे पास, ठीक है ना। दैट इज़ अ लाइन फॉर y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। मैं लिख भी दूँ उस पर, ये है y इक्वल्स टू एक्स की लाइन है। ऑलराइट, ये लाइन से होती है हमारे पास रिफ्लेक्शन इस कर्व की। अब ये कर्व यहाँ पे कट कर रहा है 0 और 3 पे, इसका मतलब है कि ये कट कर रहा होगा 3 0 पर। और चूंकि यहाँ पर 5 इसका एसिम्प्टोट है तो यहाँ पर भी 5 इसका एसिम्प्टोट बन रहा होगा, कहीं ना कहीं ऐसे चल रहा होगा, ठीक है। तो अब जो इसका ग्राफ बनेगा, 1 मिनट रुकिएगा ज़रा, मैं थोड़ा सा इसको सही बनाने की कोशिश करता हूँ। अगर ये 3 होगा 4 5, ठीक है ना, यहाँ कहीं 5 आ रहा होगा, ये इसका एसिम्प्टोट चल रहा होगा जहाँ पर ये मीट नहीं कर सकता, ठीक है ना। 3 से स्टार्ट होगा, ये मुझे मालूम है। अब ये दोनों ग्राफ आपने बनाएंगे, ये ग्राफ ऐसा चल रहा होगा आपके पास, ठीक है। तो ये आपके पास ग्राफ बन गया। अब उसने क्या किया, शो क्लियरली द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट वेयर ग्राफ मीट्स द कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड द पोजीशन ऑफ एनी एसिम्प्टोट्स। तो एसिम्प्टोट ही मैंने बना दिया, मैंने स्केच ही बना दिया। आप जब भी रफली स्केच बनाया करें तो जो आप डिस्टेंस लेते हैं ना, वो हमेशा स्केल से मेजर किया करें, वो हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए। ये मैंने रफली स्केच किया, आपका ग्राफ इसको डेविएट कर सकता है, तो मेरा बिल्कुल रफली स्केच है, लेकिन आपको नज़र ऐसा ही आना चाहिए। The function is g defined for x is greater than 0 and less than equals to 2 by g of x is 3 over 1 minus x. Find and simplify an expression for g f inverse gx. Alright, f inverse and g of x. तो सबसे पहली बात है कि आपका f of x क्या फंक्शन क्या था, दैट वाज 5 माइनस टू ई पावर माइनस एक्स। अब मैं निकालता हूँ f का इन्वर्स। इन्वर्स निकालने का पहला स्टेप ये हो जाएगा y इज इक्वल्स टू 5 माइनस टू ई पावर माइनस एक्स। ई की टर्म को पॉजिटिव कर लेंगे तो 2 ई पावर माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 5 माइनस वाई। e power minus x is equals to 5 minus y divided by 2. We need to apply ln on both sides. तो ये आएगा आपके पास माइनस एक्स एल एन ई इज इक्वल्स टू एल एन ऑफ 5 माइनस वाई ओवर 2। आपके पास एल एन ई हो जाता है 1। तो ये आपके पास बचा माइनस एक्स इज इक्वल्स टू एल एन ऑफ 5 माइनस वाई ओवर 2। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब चूंकि आपके पास यहाँ पर एक साइन नेगेटिव का आ रहा है, नेगेटिव को हटाने के लिए आई नीड टू मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव साइन ऑन बोथ साइड, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू माइनस एल एन ऑफ 5 माइनस वाई ओवर 2। अच्छा, एल एन की पावर तो हमें पता है ना कि एल एन जो होता है वो कोफिशिएंट को पावर बना सकता है। तो ये हमारे पास हो जाएगा x इज इक्वल्स टू एल एन ऑफ 5 माइनस वाई ओवर 2 पावर -1। और इसको हम ये कह सकते हैं दैट इट इज़ एल एन ऑफ 2 ओवर 5 माइनस वाई। ये बन गया मेरे पास x। और लास्ट स्टेप क्या होगा कि जब मैं लिखूँगा यहाँ पर f इनवर्स ऑफ x, तो वो हो जाएगा ln ऑफ 2 डिवाइडेड बाय 5 माइनस एक्स। ये तो हो गया मेरे पास f इनवर्स। अब क्वेश्चन में क्या कहा आपको, क्वेश्चन में कहा f इनवर्स ऑफ gx। तो मतलब इन्वर्स के फंक्शन आएगा, ये हो जाएगा ln ऑफ 2 डिवाइडेड बाय 5 माइनस एक्स। और जहाँ पर x है वहाँ पर आएगा आपका g ऑफ x। और g ऑफ x कितना है, इट्स 3 ओवर 1 माइनस एक्स। तो ये आएगा 3 ओवर 1 माइनस एक्स। ये आपने प्लेस कर दिया f ऑफ g ऑफ x को। अब आप ये देखें कितना आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं इसको। सो दैट विल बी ln ऑफ 2 डिवाइडेड बाई, नीचे अगर मैं एलसीएम ले लूँ तो ये आएगा 5 माइनस 5x माइनस 3 डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स। 1 माइनस एक्स जाके 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो 2 माइनस 2x डिवाइडेड बाई 5 माइनस 3 इट्स 2 माइनस 5x। ये आपका फाइनल आंसर है, ठीक है ना। ये 1 माइनस एक्स जाके इससे मल्टीप्लाई हो गया, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। Moving towards the next question from circular measure. In this question, all lengths are in centimeters and angles are in radians. The diagram shows sectors AOB and COD of two circles with same center. Angle AOB is 3 pi over 8
and length of OC is 6.5. Length of OC is 6.5. अगर OC 6.5 है तो OD भी 6.5 होगा, क्योंकि O तो आपके पास सेंटर है और आपको इसका एंगल मालूम है। OA रेशो OC, OA और OC का रेशो आपको पता है, इट्स 4:5। ठीक है। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द शेडेड रीजन। तो पेरीमीटर का मतलब क्या हो गया, हम यहाँ पे 4 लेंथ की बात करेंगे। ये एक लेंथ है आपके पास, ठीक है, कर्व लेंथ, दूसरी आर्क लेंथ, और 2 लेंथ हमारे पास स्ट्रेट ऐसे चल रही है। ठीक है ना। अब ये आपके पास जो चारों लेंथ हाईलाइटेड हैं, आपने इसको निकाल के एडअप करना है। तो आप पहले निकाल लेते हैं लेंथ ऑफ ए बी। तो पहला स्टार्ट करते हैं लेंथ ऑफ ए बी, वो काफ़ी आसान है इसलिए। इट्स एस इज इक्वल्स टू आर थीटा। आर आपको दिया हुआ है, आर आपको नहीं दिया हुआ। अच्छा, इससे चले मेरे पास लेंथ ऑफ, क्योंकि आर मेरे पास 6.5 है पूरी है, तो मेरे पास ये ए बी का आंसर नहीं आएगा, इससे मेरा आंसर आएगा आर्क लेंथ ऑफ सी डी। तो आर कितना है 6.5 एंड थीटा इज़ 3π/8। तो सिंप्लीफाई करते हैं, 6.5 मल्टीप्लाई बाई 3 एंड डिवाइडेड बाई 8। तो ये आ जाएगा 39/16 पाई। 39/16 पाई। ये सी डी की लेंथ आ गई। अच्छा, ए बी की लेंथ निकालने के लिए अब मुझे रेडियस चाहिए होगा छोटा वाला। उसके लिए आपको दिया हुआ रेशो 4 और 5 का, ठीक है ना। 4 ओ ए एंड ओ सी। ओ ए अगर 4 होगा तो ओ सी 5 होगा, ठीक है। तो ओ सी होगा ना, तो ओ सी का मतलब क्या हुआ, यहाँ से यहाँ तक का रेशो आपका 5 है। ठीक है बेटा। अब ये जो लेंथ है 6.5, अब आप देखें रेशो को कैसे यूज़ करना है। यहाँ पर हम रेशो को यूज़ कर रहे हैं, देखिएगा। अगर लेंथ आपके पास टोटल 6.5 है तो उसका रेशो कितना है 5, जो कि आपको दिया हुआ है टोटल रेशो। अगर रेशो मेरे पास 4 होगा तो लेंथ जो होगी उसका नाम है ओ ए, वो हमें निकालनी है। रेशो बनाने के बाद जो द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो ओ ए मेरे पास आ जाएगा 4 × 6.5 डिवाइडेड बाई 5। So 4 multiplied by 6.5 and divided by 5, it is equals to 26/5, 5.2। तो ये आपके पास लेंथ आ चुकी है भाई ओ से लेके ए की। इसको मैं मार्क कर दूं कि ये लेंथ आ चुकी है 5.2। तो जब ये दोनों लेंथ आ गई तो आप दोनों को माइनस करके निकाल लेंगे लेंथ ऑफ ए सी। लिख देते हैं भाई इसको, लेंथ ऑफ ए सी ये आपके पास आ जाएगा 6.5 माइनस 5.2, दैट इज इक्वल्स टू 1.3। अब आपके पास आएगी आर्क लेंथ ऑफ ए बी, वो भी सिंपल आ जाएगी हमारे पास, सेम फार्मूला, एस इज इक्वल्स टू आर थीटा। अब जो आर होगा इट्स 5.2 एंड थीटा इज 3π/8। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 5.2 मल्टीप्लाई बाई 3 एंड डिवाइडेड बाई 8, दैट इज इक्वल्स टू 39/20 पाई। तो ये आ गया मेरे पास 39/20 पाई। और राइट, अब कौन कौन सी लेंस को आपने ऐड करना होगा, आपने ऐड करना है 1.3 को, और ये 2 बार ऐड होगी क्योंकि 2 लेंस हैं। बी डी की भी यही होगी मेरे पास और ए सी की भी यही होगी, ठीक है ना। तो मैं लिख देता हूँ कि यार ये सेम लेंथ है मेरे पास बी डी की और ये सेम लेंथ है मेरे पास ए सी की। ए सी है ना, हाँ ठीक है। अब आपने ऐड करना है, किस किस को आपने ऐड करना है, मैं उनको हाईलाइट कर रहा हूँ। ये ऐड होगा, ये ऐड होगा और ये ऐड होगा, ठीक है ना। तो पहले हम पाई वालों को ऐड कर लेते हैं। पाई वाले क्या हैं, 39/20 प्लस 39/16, और इन दोनों को ऐड करने के बाद मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा पाई से, 3.142। ये आ गई मेरे पास सारी लेंस, और उसमें मैंने ऐड कर दिया 1.3 प्लस 1.3, क्योंकि 2 लेंस 1.3 के हैं। तो जो आपका टोटल आंसर आ जाएगा दैट इज इक्वल्स टू 16.38। 16.38, दैट इज़ योर पेरीमीटर ऑफ द शेडेड रीजन, या आप कह सकते हो ये हो जाएगा 16.4 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर है। All right, moving towards the next question. Part B. The question says diagram shows a circle with center O and radius A. Sector PQR is a sector of a different circle. PQR is a sector of a different circle with center R. Alright, तो ये center हो गया आपके पास sector के हिसाब से, and radius Y. तो ये आपका radius हो गया Y. Angle OPR is psi. Find in terms of A and psi only the total area of the 3 shaded regions. Simplify your answer. Alright. तो अब आपको निकालना है भाई एरिया ऑफ द शेडेड पार्ट। हमारा मेन जो वो होगा, कैसे हम अचीव करेंगे, तो मैं ये कह सकता हूँ दैट एरिया ऑफ शेडेड इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ सेक्टर। ये जो है ना, ये मेरी मेन इक्वेशन है।
अब इस इक्वेशन के हिसाब से मुझे ये समझ में आएगा दैट आई नीड टू फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल एंड एरिया ऑफ सेक्टर. सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम एरिया ऑफ सर्कल. तो एरिया ऑफ सर्कल हमारा बहुत इजीली आ जाएगा, सिर्फ फॉर्मूला लगा रहे हैं. एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर. सो पाई एंड रेडियस इज व्हाट? रेडियस इज वाई. नो, नॉट वाई. रेडियस इज ए. पाई ए स्क्वायर. पाई रेडियस तो आपका सेक्टर का है, तो ये आ जाएगा मेरे पास पाई ए स्क्वायर, दैट इज द एरिया ऑफ सर्कल. ऑलराइट, अब आपके पास एरिया ऑफ सेक्टर पर आते हैं. एरिया ऑफ सेक्टर. एरिया ऑफ सेक्टर के लिए पहले आपको मालूम करना पड़ेगा रेडियस, जो कि आपके पास है वाई. अब हम थोड़ा डायग्राम को कंप्लीट करते हैं. अगर मैं ओ से एक लाइन ड्रॉ करूंगा तो ये जो लाइन मेरे पास पॉइंट तक आएगी वाई तक, दैट विल बी रेडियस एज वेल. ऑलराइट, ये भी रेडियस हो गया मेरे पास, तो दैट इज ए एज वेल. अगर ये आपके पास साई है एंगल, तो ये एंगल भी आपके पास साई ही होगा, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाएगा. तो सबसे पहले तो मैं एक काम करता हूँ कि ये एंगल को कहता हूँ मैं कि यार ये एंगल मेरे पास लेट सपोज टी है, तो मुझे टी एंगल निकालना है. अब ये टी एंगल कैसे आएगा? बहुत सिंपल है. इट विल बी साई प्लस टी इज इक्वल्स टू पाई, और टी आ जाएगा मेरे पास पाई माइनस टू साई. ये आपके पास आ गया टी का एंगल. अब y निकालने के लिए वी कैन अप्लाई लॉ ऑफ कोसाइन हेयर. जैसे मेरे पास y आ जाएगा, सो दैट विल बी इक्वल्स टू वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस टू ए स्क्वायर एंड कॉस ऑफ टी. ऑलराइट, सिंप्लीफाई करेंगे इसको तो ए स्क्वायर टू ए स्क्वायर माइनस टू ए स्क्वायर एंड कॉस, और टी की जगह हम वो एंगल प्लेस कर देंगे जो हमने निकाला था, दैट इज पाई माइनस टू साई. ये आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी? ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी वाई स्क्वायर की. ऑलराइट, अब आपके पास रेडियस आ गया सेक्टर का, आपके पास एरिया ऑफ सर्कल आ गया. अब शेडेड पार्ट पे हम काम करना स्टार्ट कर सकते हैं. ऑलराइट, we had decided earlier that area of shaded part is equals to area of circle minus area of sector. So area of circle we got it's pi a square minus area of sector का working formula क्या होता है हमारे पास? It's very simple, 1/2 r square theta. Alright, अब यहाँ पर आपके पास थीटा. थीटा क्या होगा भाई? देखते हैं. अगर ये वाला एंगल हमारे पास साई है, तो ये वाला एंगल भी आपके पास साई होगा. ठीक है ना? दोनों आपके पास, अगर मैं इसको ऐसे कनेक्ट कर दूं तो यू विल गेट द सेम ट्राइंगल्स. दोनों ट्राइंगल आपके पास सेम होंगे. ठीक है, तो इसका मतलब ये पूरा जो आपके पास एंगल आर बन रहा है, एंगल आर जो पूरा एंगल बनेगा दैट इज इक्वल्स टू टू साई. ये आपका एंगल आर आ जाएगा. सो दैट इज इक्वल्स टू पाई a square minus 1/2 r square. R is basically what? R is basically y square. So place the value for y square here, that is 2a square minus 2a square cos and pi minus 2 theta times what is theta? Theta is 2 psi. Alright, यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन करते हैं हम लोग, तो 2 और 2 हमारे पास हो गया कैंसिल. सो आफ्टर दैट इट इज इक्वल्स टू पाई ए स्क्वायर माइनस, ब्रैकेट को एक्सपेंड कर देता हूँ, तो माइनस टू ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस टू ए स्क्वायर कॉस पाई माइनस टू थीटा टाइम्स साई. ऑलराइट, अब आप क्या करेंगे? अब आप यहाँ साई को मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा पाई ए स्क्वायर माइनस साई मल्टीप्लाई होगा तो टू ए स्क्वायर साई प्लस टू ए स्क्वायर साई कॉस पाई माइनस टू साई. ऑलराइट, इस पूरी इक्वेशन से आप ए स्क्वायर कॉमन निकाल सकते हो, सो यू विल गेट पाई माइनस टू साई प्लस टू साई कॉस पाई माइनस टू साई, और ये आपका फाइनल आंसर. Moving towards the next question. Question number 10. A particle P moves in a straight line such that t seconds after passing a fixed point O, its acceleration is given by this expression: a is equals to 60 and a is equals to 18 e cube divided by et for t greater than equal to 3. When t equals to 1, the velocity of p is 2 meter per second and its displacement from O is negative 4. Find the velocity of p when t is equals to 3. Alright, for first part. फाइंड द वेलोसिटी ऑफ p व्हेन t इज इक्वल्स टू 3. तो यहाँ पर आपके पास दो एक्सप्रेशन आ रहे हैं कि जब 0 से लेके 3 तक जाएगा और 3 से जब बड़ा हो जाएगा,
तो अभी हमारे पास अगर ये कह रहा है व्हेन t इज इक्वल्स टू 3, तो हम लेंगे सिर्फ पहला वाला एक्सप्रेशन. ऑलराइट, सो इट इज इक्वल्स टू a इज इक्वल्स टू 60. आपको निकालना है वेलोसिटी, यू नीड टू अप्लाई इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड. So it will be v is equals to 6t square divided by 2 plus c. So you will get v equals to 3t square plus c. To find the value of c, आपको कुछ initial condition दी है कि जब when t is equals to 1 p is 2. तो जब आपने t की जगह 1 पुट किया तो v की जगह आप पुट करेंगे 2 plus c and you will get the value for c, it's negative 1. इस सी को आपने सिंपल प्लेस करना है दोबारा वी वाली एक्सप्रेशन में, इसमें आप दोबारा प्लेस करेंगे. सो वी इज इक्वल्स टू 3t स्क्वायर माइनस 1. अब उसने आपसे कहा अगर टाइम की वैल्यू 3 होगी तब आप बताएं वेलोसिटी क्या है. तो आप सिंपल टाइम की जगह 3 पुट कर देंगे. तो वेलोसिटी इज इक्वल्स टू 3, टाइम की जगह 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1. सो वेलोसिटी इज इक्वल्स टू 27 माइनस 1, इट्स 26 मीटर्स पर सेकेंड. ये आपका पहले पार्ट का आंसर आ जाएगा. Alright, moving towards the next one, find the displacement of P from O when t is equals to 3. अब आपने फाइंड आउट करना है डिस्प्लेसमेंट. तो आपके पास वेलोसिटी तो आ चुका है ना, ये वेलोसिटी हम निकाल चुके थे. तो अगर आपके पास वेलोसिटी आ चुकी है 3t स्क्वायर माइनस 1 और आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है, यू नीड टू इंटीग्रेट इट अगेन. तो आपके पास क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू टी क्यूब माइनस टी प्लस, अब सी नहीं आएगा अब डी आएगा. क्या इनिशियल कंडीशन में आपको दिया हुआ है कुछ? यस, ये दिया हुआ है. इट्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ओ इज -4. मतलब आपको ये पता लग गया कि जब आपके पास टाइम की वैल्यू, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ओ इज -4, जब आपके पास टाइम की वैल्यू 0 है उस वक्त आपका डिस्प्लेसमेंट जो है वो -4 है. तो आपने पुट किया एस की जगह -4, टी की जगह 0, तो आपके पास डी का आंसर आ जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू -4. इस डी के आंसर को आपने दोबारा इसमें प्लेस कर दिया. सो यू विल गेट एस इज इक्वल्स टू टी क्यूब माइनस टी एंड -4. अब उसने आपसे कहा डिस्प्लेसमेंट फाइंड करनी है जब आपके पास टाइम की वैल्यू 3 है. तो टाइम की जगह आप 3 पुट कर देंगे तो दैट विल बी 3 पावर क्यूब माइनस 3 एंड -4 s. So s is equals to 27 minus 3 minus 4. So 27 minus 7 it's 20. ये आपके पास आपका डिस्प्लेसमेंट का आंसर आ गया जब टाइम की वैल्यू आपको 3 दी हुई थी. Alright, moving towards the next question. Find an expression in terms of t for the displacement of p from O when t is greater than equal to 3. अब यहाँ पर आपका एक्सप्रेशन वो होगा जहाँ टाइम की वैल्यू 3 या 3 से ज़्यादा होगी. तो वो कहाँ है हमारे पास, वो हमारा सेकेंड एक्सप्रेशन था, दैट इज a इक्वल्स टू 18e क्यूब डिवाइडेड बाई e पावर t. ओहो, a इज इक्वल्स टू 18e क्यूब डिवाइडेड बाई e टू द पावर t. यही था आपके पास, ठीक है ना. आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने बनाना है एक्सप्रेशन ऑफ t फॉर द डिस्प्लेसमेंट. तो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पर आपने इसको इंटीग्रेट करना स्टार्ट किया. द फर्स्ट टाइम हम इसको इंटीग्रेट करना स्टार्ट करेंगे तो ये आएगा हमारे पास v. लेकिन उससे पहले क्या हम इसको थोड़ा अरेंज ना कर लें, हम इसको पहले अरेंज कर लेते हैं. तो ये हो जाएगा 18e टू द पावर 3 और जब ये नीचे वाला t ऊपर जाएगा दैट विल बी -t. ऐसा हो जाएगा, सही है. अब ये होने के बाद अब इसको इंटीग्रेट करना हमारे लिए ईजी है. अब हम इंटीग्रेशन स्टार्ट करते हैं. तो a का इंटीग्रल तो आ जाएगा v, 18 अपनी जगह, एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रल एक्सपोनेंशियल दैट इज 3 - t और फिर उसकी पावर का इंटीग्रल. तो पावर का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, दैट विल बी -1. ये पावर का इंटीग्रल आ गया इसका, प्लस सी. ऑलराइट, तो अच्छा ये होगा डिवाइड में ना, इंटीग्रेशन में तो डिवाइड में आएगा, तो डिवाइड में -1 कर देंगे इसको आप. So that will be equals to -18e to the power 3 - t and then plus c. ये आपका बना वेलोसिटी का एक्सप्रेशन, सही है. अब यहाँ पर आपको c निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, अब ये देखते हैं. अब आपके पास टाइम की वैल्यू कितनी है, टाइम की वैल्यू आपके पास है ग्रेटर देन इक्वल टू 3. पर हम प्लेस करते हैं हमारे पास टाइम की वैल्यू 3 है एट t इज इक्वल्स टू 3. जब टाइम आपके पास 3 था उस वक्त आपके पास वेलोसिटी कितनी थी, वो हमने निकाली थी ना, 26 थी. सो जब टाइम हमारे पास 3 है उस वक्त आपके पास जो वेलोसिटी है दैट इज़ 26. सो प्लेसिंग द वैल्यूज हियर. अब आपने v की जगह प्लेस किया 26 इज इक्वल्स टू -18 e टू द पावर 3, टाइम की जगह आपने 3 प्लेस किया एंड प्लस c.
Now it will be 26 is equals to minus 18. E power 0 is 1 plus c. दोनों को आपने ऐड किया 26 plus 18 you will get the value for c. It is equals to 44. तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन बन रहा था वो क्या हो जाएगा v इज इक्वल्स टू माइनस 18 ई टू द पावर 3 माइनस टी एंड प्लस 44. ये आपका बन गया वेलोसिटी का एक्सप्रेशन. आपको तो अल्टीमेट गोल क्या है, हमारा अल्टीमेट गोल था हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है, ठीक है ना. तो इसका मतलब ये होगा कि अब हम इसको दोबारा इंटीग्रेट करेंगे. जब आपने दोबारा इंटीग्रेट किया सो दैट इज डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू माइनस 18 एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रल एक्सपोनेंशियल और फिर वो डिवाइड होगा अपनी पावर से, दैट इज -1 प्लस 44 टी एंड देन अगेन आर डी. ऑलराइट, तो ये तो आपके पास आ रहेगा 18 ई टू द पावर 3 माइनस टी प्लस 44 टी एंड प्लस डी. अब जब आपके पास टाइम की वैल्यू 3 थी एट टी इज इक्वल्स टू 3, जब टाइम की वैल्यू 3 है उस वक्त आपके पास डिस्प्लेसमेंट कितनी थी 20. ये हम निकाल चुके थे राइट. तो एट टी इज इक्वल्स टू 3 डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू 20. अब आपने ये प्लेस करना है अपनी इक्वेशन में, so you will get the value for d here. तो डिस्प्लेसमेंट की जगह 20 आ गया इज इक्वल्स टू 18 प्लस 44 टाइम्स 3 एंड प्लस d. तो ये आप इसको सॉल्व कर लें. 44 टाइम्स 3 प्लस 18 एंड 20 minus answer. So you will get the value for D, it's negative 130. Alright, और अब आपने फाइनली इसमें प्लेस करनी वैल्यू तो आपको फाइनल आंसर आ जाएगा. सो S इज इक्वल्स टू 18 ई टू द पावर 3 माइनस टी प्लस 44 टी एंड माइनस 130. ये आपका फाइनल आंसर आ गया फॉर द डिस्प्लेसमेंट इन टर्म्स ऑफ टी. ऑलराइट, तो आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी. आगे बढ़ते हैं बेटा. क्वेश्चन नंबर 11. द नॉर्मल टू द कर्व y इक्वल्स टू साइन 4x माइनस पाई एट द पॉइंट a comma 0 वेयर a is greater than pi over 2 and less than pi meets the y-axis at the point B. Find the exact area of the triangle OAB where O is the origin. All right. नॉर्मल टू द कर्व, आपके पास कर्व की इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल्स टू साइन 4x माइनस पाई. ऑलराइट, इक्वेशन निकाली है मैंने, डेरिवेट तो करना पड़ेगा ताकि मेरे पास ग्रेडियंट आ जाए. तो हम स्टार्ट करते हैं इसकी डिफ्रेंसिएशन से. सो डी वाई ओवर डी एक्स, साइन का डेरिवेटिव किया तो वो आ जाएगा कॉस 4x माइनस पाई एंड देन डेरिवेटिव ऑफ एंगल वो आ जाएगा मेरे पास 4. तो ये आ जाएगा मेरे पास इसका डेरिवेटिव 4 cos 4x माइनस पाई. अब यहाँ पर हमने इसको यूज़ करना होगा जो पॉइंट ए की बात कर रहा है, ठीक है ना. अच्छा, ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है, a,0. तो मेरे पास जो इक्वेशन थी, इक्वेशन मेरे पास क्या है, y इक्वल्स टू साइन 4x माइनस पाई. ऑलराइट, ये आपके पास इक्वेशन है. जब आपने पॉइंट ए को प्लेस किया, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या, उसके कोऑर्डिनेट्स हैं a,0. तो जहाँ पर y, 0 प्लेस कर देंगे, 0 इज इक्वल्स टू साइन 4 और जहाँ पर x है वहाँ पर आएगा आपके पास a 4a माइनस पाई. अब ए के बारे में उसने आपको क्लियर कट बताया हुआ है कि ए आपका पाई ओवर 2 से बड़ा है, ठीक है ना. अब जब हम साइन को वहाँ लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ 0 इज इक्वल्स टू 4a माइनस पाई. अब यहाँ पर आपको साइन के कर्व का आइडिया होना चाहिए. अगर हम साइन का एक रफली स्केच करें तो साइन का कर्व 0 कब कब होता है, साइन का कर्व 0 होता है 0 पर, साइन का कर्व 0 होता है 180 पर या पाई पर, और साइन का कर्व 0 होता है 2 पाई पर. ऑलराइट, तो मेरे पास 3 आंसर्स आ सकते हैं. यहाँ पर 0 आ सकता है, पाई आ सकता है और 2 पाई आ सकता है, जहाँ पे साइन 0 है. इक्वल्स टू मेरी इक्वेशन क्या है, 4a माइनस पाई. अब अगर मैं तीनों से सॉल्व करूँ, ऑल्दो मुझे पता है कि आंसर 2 पाई से आएगा क्योंकि मेरी रेंज ही उसने ऐसी दी हुई है. अगर मैं करके दिखाऊँ आपको, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम 0. अगर मैं 0 लिखूँ, 0 इज इक्वल्स टू 4a माइनस पाई, तो a क्या हो जाएगा मेरे पास, a विल बी पाई ओवर 4. तो a तो आपकी रेंज से आउट हो गया, इसका मतलब है कि हम इसको नहीं लेंगे. अगर हम पाई लें, तो ये हो जाएगा पाई इज इक्वल्स टू 4a माइनस पाई 2 पाई ओवर 4 इज इक्वल्स टू a, और a हो जाएगा 1/2. ये भी आपकी रिजेक्ट हो जाएगी. क्यों, क्योंकि उसने कहा हुआ है पाई ओवर 2 से बड़ा होना चाहिए, बराबर नहीं हो सकता. तो अब हम स्टार्ट करेंगे फाइनली अपने पास 2 पाई से. तो ये हो जाएगा 2 पाई इज इक्वल्स टू 4a माइनस पाई वहाँ जाएगा, दैट लीड्स टू 3 पाई ओवर 4 इज इक्वल्स टू a.
यहाँ पर आपको a का आंसर मिल गया। जैसे ही आपको ये आंसर मिल गया, आपके पास x की वैल्यू आ चुकी है, उसको आप फ़ौरन अपने पास प्लेस करेंगे। तो यहाँ पर जो पॉइंट था मेरे पास, पॉइंट क्या था, a, 0। तो यहाँ पर मैं प्लेस कर सकता हूँ 4 cos 4a माइनस पाई, मैंने पॉइंट प्लेस कर दिया a का, ठीक है। और अब a की वैल्यू मेरे पास आ चुकी है 4 cos 4, और a की जगह उसकी वैल्यू प्लेस कर दूंगा, दैट इज़ 3 पाई/4। ये वैल्यू प्लेस कर दी मैंने a की, एंड इट्स माइनस पाई। सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 4 से 4 कैंसिल हो गया, इट इज़ 4 cos 3 पाई माइनस पाई, इट्स 2 पाई। ऑलराइट, cos 2 पाई कितना होता है, मेक श्योर कि कैलकुलेटर मेरा रेडियन में हो। cos 2 पाई, ये आ गया मेरे पास 1, तो दैट इज इक्वल्स टू 4। ये आपके पास क्या आया, ये आपका ग्रेडियंट आ गया, लेकिन ये ग्रेडियंट आपका टेंजेंट का आया है। मेक श्योर कि आपको पता होना चाहिए दैट यू नीड टू फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ नॉर्मल। तो जो आपका ग्रेडियंट आएगा नॉर्मल का, दैट इज नेगेटिव रेसिप्रोकल, वो आएगा -1/4। ये आपका वो ग्रेडियंट है जो आप अपनी इक्वेशन में यूज़ करोगे। द नॉर्मल टू द कर्व मीट्स द वाई एक्सिस एट पॉइंट बी। अच्छा जी, अब बी के कोऑर्डिनेट्स की तरफ आते हैं, ठीक है ना। मेरे पास कर्व की इक्वेशन क्या होगी, इट इज़ इक्वल्स टू y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m x माइनस x1। ये हमारे पास कर्व की इक्वेशन होती है। मेरे पास जो भी कोऑर्डिनेट है वो है a का, जो आपको दिया हुआ है, वैल्यू कितनी है, a, 0, कहाँ ये रहा, a, 0। तो मेरे पास जो कोऑर्डिनेट है इस वक्त वो है a, 0, और a की वैल्यू मैं निकाल चुका हूँ, इट्स 3 पाई/4, 0। ये मेरी पूरी इक्वेशन है, ठीक है ना। अब यहाँ पर वैल्यू प्लेस करता हूँ मैं। सो y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m माइनस 1/4 x माइनस x1, इट्स 3 पाई/4। So you will get the equation of normal from this one. So y equals to -1/4 x minus 3 पाई/4। ऑलराइट, मैं आगे मज़ीद सॉल्व करने से पहले रीड करूँगा कंडीशन। मेरे पास जो पॉइंट बी है बेटा, वो लाई कर रहा है कहाँ पर, y एक्सिस। y का मतलब क्या होगा कि मेरे पास जो x के कोऑर्डिनेट होंगे ना, फॉर बी, यहाँ स्टार्ट करते हैं, चलें, फॉर बी। अब b का लाई कर रहा है y पर, इसका मतलब है x 0 होगा और y की कोई ना कोई वैल्यू होगी, वो मुझे निकालनी है, ठीक है ना। तो y इज इक्वल्स टू -1/4, और x की जगह 0 प्लेस कर दिया, एंड -3 पाई/4। ये मैं b के कोऑर्डिनेट निकाल रहा हूँ। So that will be equals to y equals to -1/4, -3 pi/4, and you will get the coordinate 3 pi/16y। तो आपके पास b का कोऑर्डिनेट आ जाएगा 0,3 pi/16। आपके पास a का कोऑर्डिनेट आ चुका है, इट्स 3 pi/4, 0। यहाँ तक हमारी पूरी कहानी क्लियर हो चुकी है, और अब हम जाएंगे सिंपल इसके एरिया की तरफ। फाइंड द एग्जैक्ट एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी वेयर ओ इज द ओरिजिन। अब आप यहाँ पर हीरोज फार्मूला अप्लाई करोगे टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ ट्राइंगल। लेकिन हम यहाँ स्टार्ट कर लेते हैं सबसे अलग। तो ए मेरे नहीं, पहले ओ था ना, ओ ए बी है। तो पहले मेरे पास ओ है, दैट इज ओरिजिन 0,0 पे मेरे पास ए है, इट्स 3 पाई/4, 0। अब मेरे पास बी है 0,3 पाई/16। ऑलराइट, फार्मूला अप्लाई करते हैं, हीरो दे फार्मूला फॉर एरिया। एरिया इज इक्वल्स टू 1/2 ब्रैक मॉडुलस x1 x2 x3 x1 y1 y2 y3 एंड y1। अब आपके पास ये जो पहला कोऑर्डिनेट था आपका O का, दैट इज x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3। ऑलराइट, नाउ वी आर गोइंग टू प्लेस द वैल्यूज हियर। सो इट्स 1/2। What is x1 y1? x1 0 0, x2 y2, it's 3 pi/4 and 0, it's 0,3 pi/16 and 0 0। ऑलराइट, अब सॉल्व कैसे करते हैं इसको, बहुत सिंपल है। अब आप जब इसको सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो 0 टाइम्स 0, इट विल बी 0, प्लस 3 pi/4 इंटू 3 pi/16, दैट विल बी 9 pi² / 64। दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, एंड 0 टाइम्स 0, इट विल बी 0। ऑलराइट, ये पहला आपका ब्रैकेट हो गया। नाउ वी नीड टू इंट्रोड्यूस द नेगेटिव साइन, और अब आपका दूसरा ब्रैकेट आएगा। ऑलराइट, इसमें बैकवर्ड चलेगा। 3 pi/4 इंटू 0, इट विल बी 0,
प्लस 0 इंटू 0 0 प्लस 0 टाइम्स 3 पावर 16 0। तो सेकंड ब्रैकेट तो कंप्लीट आपका 0 हो गया, इसका मतलब जो वर्किंग है फर्स्ट ब्रैकेट में दैट विल बी इक्वल्स टू 1/2 टाइम्स 9 pi square over 64 and you will get 9 pi square divided by 128, that will be the area of this triangle। एग्जैक्ट एरिया के बारे में तो आप इसको मज़ीद सॉल्व नहीं कर सकते, ये आपका फाइनल आंसर है और यहाँ पर आपका पेपर कंप्लीट हो गया। आई होप कि आपको पेपर समझ में आया होगा। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो प्लीज़ आप मुझे यहाँ पर मैसेज ड्रॉप कर दिएगा कमेंट में और मैं कोशिश करूँगा कि ASAP मैं आपको इसका रिप्लाई कर सकूँ। थैंक यू।